Good day to all of you. This is Imranul Haq with the new reading passage. The book number is 17 and it is general reading. It is test 1 and section 2. Let's go for the questions. We'll read the first questions. Complete the sentence below. The sentences are given below. You can see here all the sentences are highlighted as well. So choose one word only. Try to keep in mind the instructions given by the writer, because these are the hard and fast instructions. इन्हें आपको हर सूरत में फॉलो करना होगा, अदरवाइज ये होगा आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत होगा, उसका आंसर गलत होगा. तो इसकी सबसे पहले चूज वन वर्ड ओनली. ट्राई टू कीप इन माइंड यू विल हैव टू यूज ओनली वन वर्ड. जी, तो द वेरी फर्स्ट sentence is, my many job applicants do not dare to reveal in a CV what their real dash is. So you can see the some what you call that clue words. Many job applicants do not dare to reveal, do not dare to reveal in their CV. CV is a capital, you can say, and you can find it out in the text in an easy way, because it's in capital letters. So many job applicants do not dare to reveal in a CV what their real is. What is their real is? We'll go for the uh, text. You can see this text. Text is book 17, general reading. See this. We'll go for writing a personal CV. You are a unique. You are a unique. No one, no one has the same behavior makeup that you have. Likewise, everyone's career history is also unique. Why is it then that a great many CVs are mostly descriptions of past jobs or standard CVs templates and give away very little about the individuals behind the CV? It's almost as if the majority of job seekers are, you can see this majority, it's almost as the majority of job seekers are afraid to let their personality shine through. See this, we'll go for the questions. You should remember the majority of job seekers are afraid. You can see this is many job applicants, majority of the job seekers do not dare to reveal, they don't reveal. Okay, we'll check further. It's almost as if the majority of job seekers are afraid, do not dare. You can see almost everything is same, everything dare to let their own personality, you can say own their own personality shine through, to reveal. Shine through means to reveal, show. Okay, you can see this. Many job applicants do not dare to reveal in their CVs what their, you can say their shows up possession. Also here you can say their their own personality. Okay, they don't want to reveal, they are afraid to reveal their own personality. They don't want to reveal their personality, you can say. So write the spellings, write the spelling correct also. Personality. So if your spellings are wrong, try to keep in mind that your answer is also wrong. Second question is, if applicants do not include, if applicants, these are the, you can say these one, applicants do not include what makes them distinctive. Distinctive is important. Clear, their CVs are likely to appear CVs to the reader. So these are some, you can say clue words, main words, content words. Let's go for the do not include. If applicants do not include what makes them distinctive, their CVs are likely to appear. अगर एप्लीकेंट जो है वो कुछ नुमाया चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें शामिल नहीं करते जो उनको सीवी में नुमाया करें, तो उनकी सीवी ऐसे लगती है किसको, रीडर को. अब कैसी लगती है सीवी, तो हम देखते हैं. Perhaps in a corporate world where everyone feels that the same professional image, dress in dark formal suits, for example, the same is
subconsciously felt CV, but there's a difficulty here. You want your CV to stand out. ये देखिएगा जरा, you want your CV to stand out, and yet at the same time are afraid, see, afraid of saying anything that might make you stand out. See here, stand out means distinctive. This is the same na, yet at the same time you are afraid of saying anything that make you stand out. It means आप कुछ ऐसी चीज उसमें शामिल नहीं करना चाहते. The problem with the above thinking, ये थिंकिंग जो है, ये वाली कि आप स्टैंड आउट नहीं करना चाहते, उसमें सीवी में मेंशन नहीं करना चाहते. द प्रॉब्लम विद द अबव थिंकिंग इज पेनफुली क्लियर. तो क्लियर, योर सीवी विल डल एंड लाइकली और मकान है टू बी स्विफ्टली पास्ड ओवर बाय एन एम्प्लॉयर इज अ रीडर, कैन से पास्ड ओवर. he would not notice your CV, what's written there, it looks dull to him. So it उसके लिए ये ऐसे ही है जैसे dull है. If applicants do not include what makes them distinctive, their CVs are likely to appear. See यहाँ पे देखें, appear है, reader है, डिस्टिंक्टिव है. डिस्टिंक्टिव जैसे स्टैंड आउट मैंने लिखा है. द प्रॉब्लम विद द अबव थिंकिंग पे योर सीवी विल बी डल एंड लाइकली. सीखें, लाइकली है, ठीक है, लाइकली उधर भी लिखा है, यहाँ पे भी. टू बी स्विफ्टली पास्ड ओवर, गुजर जाएगी. बाय एन एम्प्लॉयर रीडर है, स्विफ्टली पास्ड नोटिस नहीं लेगा जो आपका रीडर है. रीडर सीवीज के एम्प्लॉयर्स ही होते हैं. तो हम ये रीडर है तो सीवी आपकी उसको अगर डल लगेगी तो वो उस पास से गुजर जाएगी, वो इसका नोटिस नहीं लेगा. तो कहता है इफ एप्लीकेंट्स डू नॉट इंक्लूड व्हाट मेक्स देम डिस्टिंक्टिव, देयर सीवीज आर लाइकली टू अपीयर डल. डल जी. तो द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेंट्स नीड टू फाइंड वेज. एप्लीकेंट नीड टू फाइंड वेज टू डिफाइन. So these are the that makes them do well in their work. You can see these are the clue words. These are the main words. We will go towards the text also. Sorry. So it is the 17th one. So we will go to, surely it is much better to be brave. To define your personal. Define. This is define. You can say. This is define your brand. As marketer might say, this isn't about making unsupportable statement. It is about choosing words that describe the qualities. अगर यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो कहता है surely it is much better to be brave. यानी ब्रेव होना, जो कुछ है आपका रियलिटी है आप उसको डिस्क्राइब करें. टू डिफाइन योर पर्सनल ब्रांड. डिफाइन, अगर ये कि पर्सनल ब्रांड को डिफाइन करना जो है एज मार्केटर माइट से, जैसे कि मार्केटर्स कहते हैं, दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग अनसपोर्टेबल स्टेटमेंट. दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग अनसपोर्टेबल स्टेटमेंट. इट इज अबाउट चूजिंग वर्ड. बल्कि ये चूजिंग वर्ड है दैट डिस्क्राइब, जो बयान करते हैं, क्या करते हैं, क्वालिटीज दैट ड्राइव योर सक्सेस. जी अगर देखें, इन शॉर्ट व्हाट मेक्स यू गुड एट जॉब. आप सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन वो मैच हो रही हैं. एप्लीकेंट्स नीड टू फाइंड वेज टू डिफाइन. आपने देखा है फाइंड वेज टू डिफाइन है. इट इज़ अबाउट चूजिंग वर्ड्स. डिफाइन वेज, ठीक है जी. टू डिस्क्राइब, ठीक है जी. फाइंड वेज टू डिफाइन लेकिन टेक्स्ट में डिस्क्राइब लिखा है. डिफाइन द, यहाँ पे डिस्क्राइब, ठीक है जी. देखिए ज़रा, अबाउट चूजिंग, डिस्क्राइब द क्वालिटीज, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज दैट मेक्स देम डू वेल इन देयर वर्क. अगर आप फिर इसके बाद में देखें, क्वालिटीज दैट ड्राइव योर सक्सेस, ये देखें बिल्कुल सेम वही चीज़ लिखी हुई है. इन शॉर्ट व्हाट मेक्स यू गुड एट योर जॉब. आप ये भी आगे भी देख लें तो क्या है, दैट मेक देम डू वेल इन देयर वर्क. सेम बिल्कुल मीनिंग्स है, सेम वर्डिंग्स है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट. हेल्पफुल है एप्लीकेंट के लिए टू ट्राई, कि वो कोशिश करे, टू बेस अ कंसिडरेशन ऑफ देम सेल्फ, ठीक है जी.
कि वो एप्लीकेंट्स जो हैं वो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा कि वो किसी ख्याल पे बुनियाद बनाने की कोशिश करें ऑन ऑफ अदर्स। ठीक है जी, अपने ख्याल की बुनियाद बनाएं। ठीक है जी, किस पर बनानी है वो भी हम देखते हैं जी। इट कैन बी हेल्पफुल एप्लीकेंट टू ट्राई टू बेस कंसिडरेशन फॉर देमसेल्फ ऑन द जी। देखते हैं हम राइटिंग अबाउट वन सेल्फ writing about oneself can sometimes be difficult. It involves the ability to see yourself from जी देखिएगा जरा, writing about oneself can be sometimes be difficult। अपने बारे में कुछ लिखना हमेशा मुश्किल होता है कभी कभार। It involves the ability to see yourself from different people's viewpoint। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी, इसमें एबिलिटी शामिल होती है कि आप अपने आप को देखें मुख्तलिफ लोगों के नुक्ता नज़र से। जैसे आपको मुख्तलिफ लोग देखते हैं, जिस नुक्ता नज़र से देखते हैं, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप भी उसी तरह अपने आप को देखें। अच्छा ये देखिएगा ज़रा, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट्स टू ट्राई टू बेस अ कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्फ, कि वो खुद भी किसी ख्याल की बुनियाद बना लें, वो जो हैं ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर। व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर, अगर आप देखें व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर। अच्छा आप इसको देखेंगे व्यू पॉइंट्स, पीपल्स व्यू पॉइंट्स, वहाँ पे व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स है। चूँकि अपोस्ट्रोफी जो है वो पोजेशन को शो करती है, इसलिए विद राइटिंग अबाउट वन सेल्फ कैन समटाइम्स भी डिफिकल्ट हो सकती है। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सी योर सेल्फ, अपने आप को देखें फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स व्यू पॉइंट, दूसरों के नुक्ता नज़र से। तो अगर दे कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट टू ट्राई टू बेस अ कंसिडरेशन ऑफ देम सेल्फ on the viewpoints of other। ये requesting the input of dependable है, input है, requesting है, can help an applicant work out their good points, own good points। अब देखिए 19वां है हमारे पास, तो जी कहता है कि requesting the input of a dependable can help an applicant work out their own good points। जी किसी जो ट्रस्टेबल है, आपका फ्रेंड है, उसको रिक्वेस्ट करना है ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपके जो अच्छे काम हैं या आपके जो गुड पॉइंट्स हैं उन पे अमल करने के लिए। तो हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। कहता है वर्किंग विद अ प्रोफेशनल CV राइटर is one way to achieve that and to present your character positively within a CV। asking a colleague that you trust। अच्छा देखिएगा, asking a colleague that you trust। अब देखिएगा, requesting the input of a dependable, requesting, asking, dependable, trust। आप देखें ट्रस्टेबल, आप कह सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्टिंग द इनपुट ऑफ अ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कहता है कि जी आस्किंग अ कोलीग, ठीक है जी, आस्किंग अ पर्सन दैट यू ट्रस्ट, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं कि कौन है ट्रस्टवर्दी, वो कोलीग है आपका। इज ऑल्सो अ गुड वे टू फाइंड आउट, ये एक अच्छा रास्ता है फाइंड आउट करने का। हाउ अदर्स सी योर स्ट्रेंथ, कि दूसरे लोग आपकी स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं। तो आपके रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं, अपने कोलीग को कर रहे हैं, कौन सा है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे वो कहता है रिक्वेस्टिंग द इनपुट ऑफ अ डिपेंडेबल कोलीग कैन हेल्प एन एप्लीकेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वो हमारे कोलीग आ रहा है, कोलीग COLLEAGUE, कोलीग। हमारे पास 20th है, इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड। देखिए जी ये बहुत बेहतर है, टू अवॉइड डैश यूज्ड बाय मैनी एप्लीकेंट्स, जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, बेहतर है कि उसे अवॉइड किया जाए। व्हेन डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ इन CV, जब वो अपने बारे में CV में लिखते हैं। तो हम देखते हैं जी, देखें पहली ही लाइन को अगर देखें, ट्राई नॉट टू यूज़ क्लासिक रिक्रूटमेंट क्लिचेस। क्लासिक ना इस्तेमाल करें, ठीक है जी, क्या इस्तेमाल ना करें, क्लासिक रिक्रूटमेंट क्लिचेस। इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड, डू नॉट यूज़, अवॉइड मीन्स डू नॉट यूज़, ठीक है, बाय मैनी एप्लीकेंट्स, जो बहुत से एप्लीकेंट्स यूज़ करते हैं, यूज़ ना करें। तो अवॉइड किससे करना है, क्लिचेस से।
क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये बताती हैं कि आपने एक ही वर्ड लिखना है, जैसे कि यहाँ पे एक ही वर्ड है हमारे पास जी, ट्राई नॉट टू यूज़ क्लासिक रिक्रूटमेंट क्लिचेस। हम रिक्रूटमेंट नहीं, क्लासिक नहीं लिख सकते, बल्कि क्लिचेस। क्लिचेस कहते हैं ओवर यूज जो फ्रेजेस होते हैं, ओपिनियंस होती हैं जो रीडर को बिट्रे करती हैं, तो आपने वो क्लिचेस जो हैं वो नहीं लिखने। एवरीवन सेज दे हैव ग्रेट कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ऐसा नहीं है। आगे तो आप ना ही पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि ट्राई नॉट टू यूज़ क्लासिक रिक्रूटमेंट क्लिचेस, आपने क्लिचेस यूज़ नहीं करने। अगर देखें इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड क्लिचे जी, तो आप देखें CLICHES क्लिचेस। अगर आप देखें तो ये इंतहाई आसान था, चूँकि ये हमारे जनरल रीडिंग में आते हैं। तो हमारा जो इसी का ही टेस्ट 2 का ये सेक्शन 2 था हमारे पास। तो अब हमारे पास जो टेस्ट 2 का सेक्शन 3 होगा वो हम देखेंगे कि वो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारे पास इसमें भी जो 21 to 27 आ रहा है ये भी जनरल रीडिंग में ही है। कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली। इसमें भी आपने वन वर्ड ही चूज करना है। हाउ टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क। ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क, काम के दौरान आपने कैसे इंतज़ाम या एक अच्छे तरीके से आपने काम जो है वो करना है, तो आपने कैसे ऑर्गेनाइज्ड काम करना है। तो हम देखते हैं जी इसके बारे में भी हम द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क अगर देखें तो हमारा जो है वो है द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क जी। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, ये आप देखेंगे ऑर्गेनाइज एट वर्क, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द वर्क एरिया इन्वॉल्व्स। काम वाला जो एरिया है उसमें जो काम को ऑर्डर में रखना है, तरतीब के साथ रखना है, वो हम देखेंगे कि ये हमारे पास अगर हम पढ़ेंगे तो है ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस। देखिए आपने ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस है, तो आपने डायरेक्टली इसी तरह ही आपने करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कीपिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसरी एंड पेपर वर्क। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पेपर वर्क है, इसका मतलब है आप इमेजिन करें कि पेपर वर्क के साथ कोई और भी चीज़ हो सकती है, इसलिए उसने एंड लिखा है, यहाँ पे एंड आया है। तो कहता है कीपिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसरी, किसी चीज़ की कम से कम चीज़ जो रखनी है, ऑफ नेसेसरी जो ज़रूरी हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। एक तो पेपर वर्क है और दूसरा कौन सा है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट टाइम लॉस्ट और स्ट्रेस काज फ्रॉम एन इनएफिशिएंट। कट डाउन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी। अब देखें कट डाउन करें, किसको करना है जी, ये मिनिमाइज करें। कट डाउन है, मिनिमाइज करें, किसको करना है, डॉक्यूमेंट्स को और स्टेशनरी को। अगर आप देखें टू द बेयर एसेंशियल्स, अगर आप यहाँ पे ही देख लें तो कहता है कीप द मिनिमम, यानी मिनिमम करें अमाउंट ऑफ नेसेसरी, ठीक है जी। मिनिमम कट डाउन करें ऑफ नेसेसरी, पेपर वर्क है तो स्टेशनरी है, और दूसरी कौन सी चीज़ है, चूंकि एंड के साथ वो कह रहा है कट डाउन डॉक्यूमेंट्स, एक तो डॉक्यूमेंट्स करने हैं, दूसरे हमारे पास स्टेशनरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी तो ऑलरेडी उसने पेपर वर्क दे दिया है, पेपर वर्क दे दिया है, ये देखें। तो हमारे पास नेसेसरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क्स हैं, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स जी। तो हमारे पास सेकंड है 22 है, रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल, रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल ऑन दी वर्क सरफेस जी, यानी वर्क सरफेस जो है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किसी ज़ाती कोई चीज़ है उसको ना रखना या उसमें जो चीज़ें हैं उसमें कमी करना। एनीथिंग दैट डज नॉट डायरेक्टली सर्व अ फंक्शन इन योर डे टू डे एक्टिविटी, 1 और 2 केयरफुली। ये कहता है, क्या कहता है, बी रुथलेस एंड रिमूव, आप हटा दें, दैट डज नॉट डायरेक्टली सर्व अ फंक्शन इन योर डे टू डे एक्टिविटी, आप रोज़ाना के कामों में जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको हटा दें। 1 और 2 केयरफुली सिलेक्टेड फोटोज़, 1 या 2 जो सिलेक्टेड फ़ोटोज़ हैं, सिलेक्टेड फोटो टू मेक योर डेस्क फील लाइक होम आर फाइन, ठीक है जी। ये कहता है 1 और 2 केयरफुली सिलेक्टेड फोटोज़, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहता है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ 1 और 2 है, तो वो नंबर की बात कर रहा है, 1 और 2 ऑफ पर्सनल फोटोज़। अगर आप देखें तो 1 और 2 पर्सनल फोटोज़
ऑन द वर्क सर्फेस, ये इसकी भी वही बात कर रहा है जी। 1 और 2 केयरफुली सिलेक्टेड फोटोज़ टू मेक योर डेस्क फील लाइक होम और फाइन, यानी ये कम ही रखें फ़ोटोज़, ठीक है, इनका इंतखाब कम रखें ताकि आपका जो डेस्क है उस पर आसानी हो जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसाइडिंग आर नॉट सेंसिबल, एक तो डिसाइड है, एक सेंसिबल है, फॉर थिंग्स दैट आर नीडेड रेगुलरली, आपने कोई सेंसिबल डिसाइड करनी है चीज़ों के लिए, जगह चीज़ों के लिए, दैट आर नीडेड रेगुलरली, जो चीज़ें आपको रोज़ाना चाहिए या हार्डली एवर या कभी कभार चाहिए, उनके लिए आपको सेंसिबल सी। क्रिएट लोकेशन, ये देखें वो कहता है बनाएं, लोकेशंस बनाएं, वेयर यू विल कीप, जहाँ पे आप रखेंगे योर वर्क मटेरियल, वर्क मटेरियल रखने के लिए आपने क्या क्रिएट करना है, आपने लोकेशंस क्रिएट करनी है। क्रिएट लोकेशंस वेयर यू विल कीप ऑल योर वर्क मटेरियल्स, अगर आप यहाँ पे देखें कहता है डिसाइड करें, क्रिएट करें ऑन सेंसिबल, कोई अच्छी सी क्या, फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए, तो लोकेशंस आ रही हैं, आपने लोकेशंस जो हैं, कहता है डिसाइड ऑन सेंसिबल लोकेशंस फॉर थिंग्स दैट आर नीडेड रेगुलरली और हार्डली। अगर इसको भी देखेंगे तो क्रिएट लोकेशंस वेयर यू विल कीप ऑल योर मटेरियल टू मेक रिट्रीवल इजी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये था 23rd। 24वां देखते हैं, प्लेसिंग कंटेनर्स, कंटेनर्स यू कैन से सम पेपर बॉक्स, पेपर एनवेलोप्स ऑन द डेस्क, अगर आप डेस्क के ऊपर कुछ कंटेनर्स रखते हैं आइडेंटिफाइड बाय, तो इनकी शनाख्त होगी, किसके साथ होगी वो देखेंगे, टू ऑर्गेनाइज ऑन गोइंग पेपर वर्क, ताकि पेपर वर्क पर जो काम जारी है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। पहली बात तो हम देखते हैं प्लेसिंग कंटेनर्स है, ऑन डेस्क है, ये हमारे पास आइडेंटिफाइड है, ऑर्गेनाइज ऑन गोइंग पेपर वर्क है, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो हैं क्लू वर्ड्स हैं जी। तो फिर उसके बाद है हमारे पास यूज आइटम्स, फॉर एग्जांपल स्टोर स्पेयर कॉपी पेपर प्रिंटर, मूव आउटसाइड योर इमीडिएट infrequently always, frustration ensues when you are searching for a client proposal but it's buried among random papers, eliminate desk, यहाँ पे desk आ रहा है, desktop कहता है एलिमिनेट डेस्कटॉप क्योस, आपके डेस्क के ऊपर जो क्योस है, इंतशार है, मुंतशिर चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको ख़त्म कर दें, बाय यूजिंग ट्रेज यूज़ कर लें, फाइल्स ये यूज़ कर लें, और वट एवर यू फैंसी मीन थिंक, जो आपके ख्याल में बेहतर है वो कर दें, एंड ऐड, और ऐड कर दें, क्या करना है आपने, लेबल्स ऐड कर, सच एज इन एंड आउट, ठीक है जी, जैसे कि इन और आउट के हैं, फॉर एक्शंस, काम के लिए, ठीक है जी, एक्शंस के लिए इन और आउट कर दें, करंट प्रोजेक्ट्स और अदर रेलिवेंट कैटेगरीज के बारे में, तो आपने ऐड किया है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, किसके साथ ऐड करना है, ऐड करते हैं क्लियर लेबल्स, क्या करते हैं, क्लियर लेबल्स। देखिए जरा, कहता है प्लेसिंग कंटेनर्स ऑन द डेस्कटॉप आइडेंटिफाइड बाय टू ऑर्गेनाइज ऑन पेपर वर्क, अगर आपने पेपर वर्क को ऑर्गेनाइज रखना है तो आप लेबल्स जो हैं उनसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जी। देख लें ज़रा, और व्हाट एवर यू फैंसी, या फिर आप जो सोचते हैं, ऐड क्लियर लेबल्स, ठीक है जी, तो क्लियर आपने लेबल लगा देने हैं वहाँ पे, आइडेंटिफाइड बाय द लेबल्स हैं। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर इज एन ऑफिशियल, आप ऑफिशियल देख लें, ऑफिशियल है, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स है, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ये जो हैं कीवर्ड्स हैं जी। तो नेक्स्ट है बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू मस्ट कीप, स्टडीज सजेस्ट दैट 80% ऑफ व्हाट फाइल इज नेवर what we file is never accessed again. Ask do I know of a tax, ask do I know of a tax, and legal देखें जरा, ask do I know of a tax और लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, लीगल, और ये देखें स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर इज एन ऑफिशियल है, वहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास है लीगल, ठीक है जी। तो स्टडी ये शो करती है कि 80% जो हम फाइल में रखते हैं, ठीक है जी, व्हाट वी फाइल इज़ नेवर एक्सेस्ड अगेन, तो फिर कम ही हमें उन तक रसाई होती है।
आस्क, ठीक है जी, ये स्टोर करते हैं इस चीज़ को ना। आस्क डू आई नो ऑफ अ टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेनिंग इट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कि दोबारा हासिल करने के लिए क्या मुझे कोई जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है या किसी टैक्स की ज़रूरत होगी। तो ऑफिशियल है तो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं यहाँ पे। आप देखें स्पेलिंग्स आपके ठीक होने चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन जनरल, ये प्लानिंग हेड अहेड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्लानिंग अहेड, अगर आप टेक्स्ट में भी देखेंगे तो अफेक्टिव प्लानिंग की बात करता है, यहाँ पे अफेक्टिव प्लानिंग की बात करता है। आपने भी ये जो अफेक्टिव प्लानिंग है उसको अच्छी तरह से देख लेना, इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा, आप आसानी से इसको ढूंढ भी सकेंगे। इन जनरल इट विल इम्प्रूव, ये देखिएगा, इट विल इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ ऑन वर्क, ये आम चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी जब आप करेंगे जी। एक तो है इम्प्रूव, दूसरा एम्प्लॉय। आम तौर पर इट विल इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ की किसी चीज़ को बेहतर बनाता है जब वो काम पर होता है, ठीक है जी, जब वो काम पर होता है। तो देखें कहता है प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, पहले तो ये करना है। टाइम स्पेंट प्लानिंग सेव्स अनटोल्ड आवर्स, अनटोल्ड आवर्स इन एग्जीक्यूशन। इम्प्लीमेंटिंग रेगुलर, ये देखिएगा ज़रा, कहता है इम्प्लीमेंटिंग रेगुलर प्लानिंग स्ट्रेटजीज, अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं रेगुलर प्लानिंग स्ट्रेटजीज तो इससे विल शार्पन, ये देखिएगा विल शार्पन योर फोकस, योर फोकस। अच्छा आप देखें ज़रा कि अगर स्ट्रेटजी आप प्लान आप जो इंप्लीमेंट करते हैं रेगुलर प्लानिंग स्ट्रेटजी, विल शार्पन, विल इम्प्रूव, क्या करेगी आपका फोकस। देखें इन जनरल इट विल इम्प्रूव, इट विल इम्प्रूव मीन्स इट विल शार्पन द इम्प्लाइज योर, क्या ऑन वर्क, काम के दौरान क्या करेगा, फोकस, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें इम्प्लीमेंटिंग रेगुलर प्लानिंग स्ट्रेटजीज विल शार्पन योर फोकस, ठीक है जी, देयर बाय कीपिंग यू ऑन द ट्रैक विद योर वर्क। ये देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज ही वो बता रहा है कि आपका फोकस जो है वो बेहतर होगा वहाँ पे। तो एम्प्लॉइज फोकस। नेक्स्ट है हमारे पास थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स इंपॉर्टेंट, एक तो नेक्स्ट डे की बात करता है, थिंक की बात करता है, इंश्योर्स इंपॉर्टेंट गिवन ड्यू अटेंशन। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है जी नेक्स्ट डे वर्क। अच्छा अब देखें ज़रा तो कहता है स्टार्ट प्लानिंग टुडे फॉर टुमारो, ये एक तो टुमारो की बात करता है क्योंकि नेक्स्ट डे है, ठीक है जी। नियर द क्लोज ऑफ ईच वर्क डे implement a 10 to 15 minutes routine to wrap up loose ends and prioritize और तरजीह दे दें की टास्क को। यहाँ देखें स्टार्ट प्लानिंग टुडे फॉर टुमारो, ठीक है जी, आप देखें स्टार्ट प्लानिंग टुडे फॉर टुमारो, देखें थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे वर्क, ठीक है जी, नेक्स्ट वर्क इंश्योर, इस चीज़ को यकीनी बनाता है, इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, आर गिवन ड्यू इंटेंशन। आप देखते हैं हम कहते हैं कि नियर द start planning today for tomorrow near the close of each work day implement a 10 to 15 minute routine to wrap up loose ends, ठीक है जी, जो आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको रैप अप कर ले एंड प्रायोरिटाइज और तरजीह दें की टास्क, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट टास्क जो है उनको। अगर आप इसमें देखेंगे कहता है थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज की टास्क, की यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज है, ठीक है जी, इंश्योर्स है, इंश्योर करें, ठीक है, इंश्योर करें, इंपॉर्टेंट करें, क्या करना है जी, देखें ज़रा एंड प्रायोरिटाइज की टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं उनकी वो यहाँ पे बात करता है, इंपॉर्टेंट टास्क। थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स इंपॉर्टेंट टास्क्स आर गिवन ड्यू अटेंशन, उन पर ड्यू अटेंशन दी जाए, ठीक है जी। लूज एंड्स अब देखेंगे नियर द क्लोज ऑफ ईच डे इम्प्लीमेंट अ 10 मिनट रूटीन टू रैप अप लूज एंड्स एंड प्रायोरिटाइज की टास्क, अ गुड प्लान फॉर टुमारो अलाउ यू टू क्लियर योर हेड एंजॉय योर इवनिंग, ठीक है जी, गुड प्लान की बात करता है, ठीक है। तो कहता है कि थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर्स योर इंपॉर्टेंट टास्क्स आर गिवन ड्यू अटेंशन। तो ये था आज का हमारा
जो रीडिंग पैसेज था, रीडिंग पैसेज जो है वो हमारा जनरल बुक 17 है, और इसका जो टेस्ट है वो 1 है, सेक्शन वो 2 है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़।